سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تصدیق کر لیا کرو. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار ہے. خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. قیام پاکستان کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے. دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئے. اللہ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت سے نوازا ہے. آرمی چیف نے کہا، مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوش ہوں. نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے وہ عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں. آرمی چیف کے خطاب کے دوران طلبہ نے پاکستان آرمی زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. نگراں وزیر اعظم تقریب کے مہمان خصوصی تھے. نوجوانوں سے خطاب بھی کیا. ہم امپورٹڈ حکومت نہیں تھے. میں مقامی اور وہ ناکامی وزیر اعظم تھا. جو وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، وہ نہیں جو یو ٹرن لے. دھوکے پر دھوکا، جھوٹ پر جھوٹ، یہ ہمارا شیوا نہیں. نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب. کہا، میرے دل کو سکون اس وقت ملے گا جب آپ کو مہنگائی سے نجات ملے گی. مریم نواز نے خطاب میں کہا، شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ نواز شریف کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہ رہے. نکالنے والوں نے بار بار نکالا. آپ بار بار ووٹ دے کر نواز شریف کو واپس لے کر آئے. صحیح معنوں میں نواز شریف میڈ ان پاکستان لیڈر ہے. نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے. ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں، مہنگائی سے ہے. جلسے میں نواز شریف چادر اور تلوار کا تحفہ دیا گیا. مریم نواز کو سونے کا ہار بھی پہنایا گیا. سیاسی کارکن قید کرنا میرے لیے حرام ہوگا. میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. یہ کام نہیں کر سکتا کہ مخالف کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالوں. بلاول بھٹو زرداری کا بھلوال میں جلسے سے خطاب. کہا، جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے. چوتھی بار الیکشن لڑنے والا آج تک اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا. وہ نہیں بتا سکا چوتھی بار اس کو کرسی ملی تو اس نے کیا کرنا ہے. ہم الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ عوام مشکل میں ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو کرسی کی فکر ہے. اب مقابلہ قائد عوام کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ کے درمیان ہے. ہم تیر سے شیر کا شکار کر کے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. آصفہ بھٹو نے NA 127 لاہور میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا. کارکنوں سے خطاب میں کہا، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے عوام اور غریب دوست منشور دیا ہے. 8 فروری کو جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری نورا کشتی بند کر دیں. کل تک یہی نون لیگ والے ان کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے. سب جانتے ہیں مقابلہ شیر اور تیر میں نہیں. سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا، نواز شریف یاد رکھیں میں ڈٹ کر کھڑی ہوں. ظالموں نے غریب کا صحت کارڈ بند کیا. عوام الیکشن میں حساب لیں گے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، پنجاب میں دفعہ 144 نئی انتقامی کارروائیوں کا جواز ہے. پابندیوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جلسے کیسے کریں گے. جیل سے ووٹ ڈالنے کے لیے پوسٹل بیلٹ کی درخواست دے دی گئی. ہم عوام کی عدالت پر انحصار کرتے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. بلاول پر تنقید. نون لیگ اور PP کی خواتین آمنے سامنے. ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا، بلاول تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کرے. PDM حکومت کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی تو برابر کی حصے دار تھی. ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ نون لیگ جیت رہی ہے. PP رہنما پلوشہ خان نے جوابی تیر چلائے. کہا، بلاول تو ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہے. ظلم ڈھانے والے تمام معاملات تو نون لیگ کے ہاتھ میں تھے. بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ کی نیندیں اڑ گئی ہیں. ان کا خوف بتاتا ہے ہم جیت رہے ہیں. نون لیگ اور PTI ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رائٹرز کو انٹرویو. کہا، چہرے بدلے لیکن پالیسیاں ایک ہی رہیں. دونوں جماعتیں اپنی کارکردگی ثابت کر چکی ہیں. آج ملک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. وفاق میں آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنانا پسند کروں گا. معمول کی سیاست پر وقت برباد نہیں کیا جا سکتا.
नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। नौजवान नस्ल को मुनासिब सिमत फराहम कर दी तो माजी की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नौजवानों के साथ सेशन, कहा हमारे पास तेल है न गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। लाहौर पुलिस का छापा, हमाद अजहर फरार, पनाह देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर जाफरिया कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस का कहना है छापे के वक्त हमाद अजहर फरार हो गए। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमाद अजहर जिना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी हैं। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मेरे वालिद की कॉर्नर मीटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाले कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे पनाह देने पर जाली मुकदमा दर्ज किया गया। कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को गिरफ्तार करना मकसद, बाकी सब ड्रामा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी पीटीआई की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शोएब शाहीन ने कहा पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीरें हैं। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। शोएब शाहीन ने कहा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत, 4 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, जिराह पर कैसे ब्रीफ करें जब केस की समाअत खत्म होती है, सेल में बंद कर दिया जाता है। जज अबुल हसनात ने कहा हमें बताया गया जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम में नहीं आते। जज ने गवाहों से जिराह से कबल वकला से मुशावरत की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा चौधरी शुजात कहते हैं परवेज पीटीआई छोड़ दे और कल बाहर आ जाए, वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। पंजाब एपेक्स कमेटी का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास। निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर लाहौर ने इजलास की सरबराही की। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और थ्रेट से निमटने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। शुरका ने इजलास में 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तरतीब प्लान का जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलेशन, बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराककार को मिसाली बनाया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम में अफरादी कुव्वत और हुकूमती मशीनरी फरहमी से बाज रहें। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में सहूलतकारी का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा बल्दियाती नुमाइंदों की उम्मीदवारों को सहूलतकारी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स को भी इंतखाबी मुहिम की निगरानी सख्त करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 हसास, 6,040 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। केपी में 6,180 हसास, 4,726 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। सिंध में 6,576 हसास, 7,802 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और बलूचिस्तान में 2,068 हसास और 2,038 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार।
हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरां वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। मुआशी तरक्की के लिए खित्ते के मुल्कों से मुस्बत रवाबित को अहमियत देने की जरूरत है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए आईटी और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। बलोचिस्तान शोहदा फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमाल रईसानी ने बताया, शोहदा के लवाहिकीन के लिए मुलाजमत में कोटा भी रखने का मुतालबा मान लिया गया है। उन्होंने गारंटी दी है वफाकी सतह पर अमल दरामद करेंगे। हम अमन पसंद हैं, चाहते हैं हमारे हाथों में कलम हो। मैंने इस मुल्क सूबे के लिए भाई, वालिद और साथियों का नजराना पेश किया। कौम परस्त लीडरों ने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। हमारी जिंदगियों को खतरे में डालकर सियासी बयानबाजी की गई। हम शोहदा के वारिस हैं, हमें उन खतरों से डर नहीं लगता। ARY न्यूज गुजरात के नुमाइंदा आमिर महमूद भट्ट घर वापस आ गए। आमिर महमूद गुज़िश्ता रात से लापता थे। अहले खाना ने आमिर भट्ट की गुमशुदगी की दरखास्त थाना सिविल लाइन गुजरात में दी थी। कराची में इंटरमीडिएट साले अव्वल के हजारों तलबा फेल होने पर परेशान, लेकिन निगरां वज़ीर आला सिंध को इत्मीनान। 60% तलबा फेल होने के सवाल पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुस्कुराकर कहा, तलबा फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए गए हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। निगरां वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिक का तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन का दौरा। कहते हैं जहां ईमानदारी से काम किया जाए वहां इतनी रुकावटें हैं कि काम ही नहीं होता। कराची में सिर्फ 60 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो शहर के साथ मजाक हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन की हालत भी अंदरूने सिंध के अस्पतालों जैसी है। अकाउंट सीज, फंडिंग ना होने के बराबर है। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से नौजवान जख्मी होने का वाकया। सीसीटीवी सामने आ गई। 17 जनवरी को शुजात बीवी बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। डाकुओं ने लूट मार के दौरान खातून को बाइक से गिरा दिया। शुजात ने मोटरसाइकिल से उतरकर मुलजिम पकड़ना चाहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। शुजात अली पेट में गोली लगने से शदीद तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में जेर इलाज। गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटे में 210 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर इसराइली हमले जारी। अब तक 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, 400 से ज्यादा जख्मी। अब भी सैकड़ों शहरी मलबे तले दबे हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अस्पतालों में दवाइयों की कमी की वजह से जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में 5 लाख फलस्तीनी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। पीने का साफ पानी ना मिलने और सीवरेज निजाम तबाह होने की वजह से बीमारियां फूट पड़ी। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 25,700 से जायद हो चुकी है, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। रूस का मिलिट्री तैयारा बेलगोरड में गिरकर तबाह, तमाम 74 मुसाफिर हलाक। रूसी हुकाम के मुताबिक मिलिट्री तैयारे में यूक्रेनी कैदियों को मुंतकिल किया जा रहा था। तैयारे 65 यूक्रेनी कैदी और दीगर अमले के अरकान मौजूद थे। भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। सिद्धू करतारपुर राहदारी के रास्ते गुरुद्वारा पहुंचे। हुकाम की जानिब से भारतीय मेहमान का इस्तकबाल किया गया। सिद्धू ने करतारपुर में यात्रियों को मिलने वाली सहूलतों पर खुशी का इजहार किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, नेपाल को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 198 रन का हदफ 14 गेंद कबल हासिल किया। अजान ओवैस ने 63 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ब्रिस्बेन हीट 11 साल बाद बिग बैश लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 54 रन से शिकस्त। सिडनी में ब्रिस्बेन ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 166 रन स्कोर किए। इन फॉर्म जॉश ब्राउन की निफ सेंचुरी, रेंशा ने 40 रन बनाए। हदफ के ताकुब में सिक्सर्स की बैटिंग लाइन दगा दे गई। स्पेंसर जॉनसन ने 4 विकेटें उड़ाकर सिडनी को सिर्फ 112 पर समेट दिया। टीम ब्लू ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। खून जमा देने वाली सर्दी में एडवेंचर का तड़का।
کرگستان میں منچلوں نے جمی ہوئی جھیل کو آئس ہاکی میدان بنا لیا. نوجوانوں نے بے خوف و خطر انتہائی مہارت سے آئس ہاکی میں اپنے فن کے جوہر دکھا کر خوب داد سمیٹی. گلگت خضر میں برف سے جمی جھیل پر ونٹر فیسٹیول. مردوں اور خواتین کی آئس ہاکی ٹیمز کے شاندار مقابلے. شہریوں نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ مقابلے دیکھے. کراچی والوں کا جگاڑ، بائک پر بائک سوار. کراچی کی سڑک پر نیا منظر دیکھنے کو ملا. موٹر سائیکل خراب ہوئی تو دھکا لگایا نہ رکشے میں ڈالی، دوسری بائک پر بائک رکھی اور میکینک کے پاس لے گئے. ویڈیو بنانے والے نے بھی نوجوانوں کو شاباش دی. سکھر کے علاقے سالے پٹ میں اونٹ میلہ. ریگستانی علاقے میں اونٹ دوڑ کے مقابلے ہوئے. اونٹوں کا رقص بھی توجہ کا مرکز بنا. اونٹوں کے ہار سنگھار کے سامان کے اسٹال بھی لگائے گئے. مختلف علاقوں کے شتربان اپنے جانور سجا سنوار کر لائے.